کہ وہ شف نہیں، وہ تف ہے. کیا میرا اس مائک کے اندر پھونک مارنے سے کیا دنیا میں یہ پھونک چلی جائے گی؟ یہ انوکھی پھونک ہے. جو لوگ اپنے وہاں امیدیں لے کے گئے بیٹھے ہیں، وہ اپنا دم کروانے گئے بیٹھے، اور وہ تف کر رہا ہے، وہ شف کر رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہے کہ میری اس پھونک سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حق خطیب، تجھے ناحق خطیب کہتا ہوں. حق خطیب نے سید اقرار الحسن کی کوئی بھینس چرا لی ہے، کوئی خزانہ چوری کر لیا ہے؟ وہ تو جھوٹا ہے. سید اقرار الحسن نے کہا 24 مارچ کو میں آپ کے اڈے پہ آ رہا ہوں، آؤ میرا سامنا کرو. وہ تو وہاں سے بھی بھاگ گیا. فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. کیا یہ فرعون اور یہ حق خطیب یہ رائے حق پر ہیں؟ السلام علیکم. اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اقرار الحسن اور حق خطیب عرف شف والی سرکار جو ہے، ان دونوں کے درمیان بہت ساری جنگ چھڑی ہوئی ہے. کب سے چھڑی ہوئی ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ میں لے کے جا رہے ہیں. لوگ کچھ جو حق خطیب کے مرید ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقرار الحسن ہے یہ جان بوجھ کے جو ہے پیسوں کی وجہ سے اس طرح کام کر رہے ہیں، یا حق خطیب کے ساتھ یہ جان بوجھ کے دشمنی لے رہا ہے. اور اس کے علاوہ اقرار الحسن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں حق اور سچ پہ ہوں. آیا اب تو وکلا جو ہے حضرات وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں. پہلے مفتی حضرات بھی اس میں انوالو تھے، اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں. حق خطیب جو ہیں وہ واقعی میں ہی اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں. آیا یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ تو قانون کی سے بھی ہم جانتے ہیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ جو وکیل موجود ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے حق خطیب کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا ہے. کیا مقدمہ درج کیا ہے، کیا ان کا بیان ہے، کیا موقف ہے، یہ ساری چیزیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشرف خان سرگانہ ایڈوکیٹ میرا نام ہے. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان کوئی جھگڑا ہے. جھگڑا کیا کوئی کسی نے اس حق خطیب نے سید اقرار الحسن کی کوئی بھینس چرا لی ہے، کوئی خزانہ چوری کر لیا ہے؟ میں یہ بات کرتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. کیا یہ فرعون اور یہ حق خطیب یہ رائے حق پر ہیں؟ یہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چیزیں بتایا، لیکن اب آپ نے جا کے یہ موقف اٹھایا ہے جب سے اقرار الحسن نے کیا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو سرچ کیا کہ ایک بندہ مذہب کے ساتھ یہ چیزیں کر رہا ہے یا اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہا ہے؟ پہلے آپ نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ پارہ نمبر 1، 2 اور 3 میں سورۃ البقرہ ہے. پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا خطاب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے کچھ قرآنی آیات تلاوت کی ہیں. ایک منٹ، میں نے قرآنی آیات تلاوت کی ہیں. میں ایک مسلمان ہوں، مجھے یہ قرآنی آیات آتی ہیں. وہ اگر مذہبی پیشوا ہے، وہ اولیاء اللہ ہے، میں اولیاء اللہ کو سلوٹ کرتا ہوں، میں اولیاء اللہ کو مانتا ہوں، میں پیروں کو مانتا ہوں، میں رائے حق والوں کو مانتا ہوں. لیکن نہ حق لوگوں کو نہ میں مانتا ہوں، نہ آپ مانتے ہیں، نہ کوئی اور مسلمان. میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے اب جا کے یہ قدم اٹھایا تھا کہ وہ اس سے پہلے تھا اقرار الحسن نے، تو اب جا کے یہ لیا ہے، تو آپ نے موقف اب یہ چیز اٹھائی ہے، جبکہ وہ مذہب کے ساتھ تو کافی دیر سے یہ چیزیں کر رہا ہے. آپ نے تب کیوں نہیں مطلب یہ جو ہے موقف اٹھایا؟ نہیں، میرے سامنے پہلے
जो है ये मामला नहीं आया था, जब सैयद इकरारुल हसन मर्द मुजाहिद वहाँ पहुँचा है और उसने सारी चीज़ों को देखा है, परखा है। देखने के बाद, परखने के बाद, जांचने के बाद उसने ये मालूमात, उसने ये सारी चीज़ें, उसने ये सारे सबूत लोगों के सामने, दुनिया के सामने, मीडिया के ज़रिए दिखाए हैं, एक्सपोज हुए हैं। तो मुझे भी ये मामला मेरे सामने भी आया है, तब मैंने ये जाके स्टेप उठाया है, कदम उठाया है। मेरी बात मज़ीद सुनते जाएं। सूरत अल बकरा आयत नंबर 102, हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जो लोगों को जादू सिखाया करते थे। ये लोगों को गलत अकायद, गलत बिद्दत और तकब्बुर करते हुए और औलिया अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचाता है। और ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ये सिर्फ अल्फाज से कह देना कोई ताजदार खत्म नबूवत के लिए अमली बात नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं हैं, वो ख़ातमुर रुसल हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। लोगों को उसको, अगर वो औलिया अल्लाह है, वो इमाम है, वो पेशवा है, वो रब है, वो रहनुमा है, लोगों को बताना चाहिए था। सैयद इकरारुल हसन ने उससे पूछा कि आप नमाज सुना दें, नमाज किस नबी की दुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि चलें इकरारुल हसन ये चीज़ें उठाई है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल उठाया है, तो प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किसी का उठाना, ये क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि सैयद इकरारुल हसन ने, आप मीडिया पर्सन हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। सैयद इकरारुल हसन ने उससे सवाल पूछा, आपको नमाज आती है या नहीं नमाज आती? पारा नंबर 13 के अंदर सूरत इब्राहिम है कि जिसकी आयत 52 है, आयत नंबर 40 और आयत नंबर 41, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आयत नंबर 41, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसको तो ये बताना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, सूरत इब्राहीम में है, पारा नंबर 13 में है, और इस दुआ का तर्जमा ये है। अच्छा, हमारे बहुत सारे जी, हम अगर हम कुरानी आयात को सुनाने लगेंगे तो माशाल्लाह कुरान पाक तो जो भी अल्लाह पाक ने फरमाया वो हक और सच है। लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है वो हक खतीब जो है शुफ सरकार और इकरारुल हसन, इनकी बातें चल रही हैं। लेकिन आप इनके बारे में कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके ये कहना है कि इकरारुल हसन ने जानबूझ के ये मौक़िफ़ उठाया है क्योंकि वो पैसे बटोरना चाह रहे हैं, वो जानबूझ के ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। मैंने आपसे ये सवाल था कि इकरारुल हसन ने ठीक है मज़हब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया है। इनका प्रॉपर्टी के बारे में बात करना एज अ कानून, आपका कानून क्या कहता है? मैं आपको पहले ये बात करता जाऊं कि वो शुफ नहीं, वो तुफ है। क्या मेरा इस माइक के अंदर फूंक मारने से क्या दुनिया में ये फूंक चली जाएगी? ये अनोखी फूंक है जो लोग अपने वहाँ उम्मीदें लेके गए बैठे हैं, वो अपना दम करवाने गए बैठे हैं, और वो तुफ कर रहा है, वो शुफ कर रहा है, और लोगों को बता रहे हैं कि मेरी इस फूंक से आप ठीक हो जाएंगे। वो कैसे ठीक हो जाएगा? यही तुफ करके तो लोगों से नजर नियाज पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो ताकतवर बन गया है, आपकी पार्टी बन गया है, वो काज़िब है, वो झूठा है। आपकी पार्टी मतलब सारे वकील हजरात जो हैं वो इकट्ठे होके वो भी गए हैं, उन्होंने बात की है इस चीज़ पे कि नहीं? मैं वकील से पहले मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ये कलमा पढ़ने वाला हूँ और खातमुन नबिय्यीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला हूँ। ये मेरा ईमान और मेरा यकीन है। लेकिन वो अगर गलत अकायद, गलत सोच, गलत नमूना, इस्लाम की गलत तशरीह वो करेगा तो उसको और उस जैसे तमाम कज़्ज़ाब को ना सिर्फ इकरारुल हसन, ना सिर्फ आप, ना सिर्फ मैं और पूरी मुस्लिम उम्मा उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी और उससे हिसाब लेगी, उसका एहतसाब करेगी। अच्छा, कि ये दौलत कहाँ से आई है? अच्छा, आपने उनके खिलाफ ये किया, पर्चा किया, तो वो आए हैं कोई अदालत में? क्या हुआ? 20 मार्च 2024 उसको मुदस्सर फरीद कोकर साहब
एडिशनल सेशन जज उसने तलब किया, वो नहीं आया। 25 मार्च 2024 नेक्स्ट डेट हुई, वो नहीं आया। अब 3 अप्रैल 2024 डेट है, अब देखते हैं कि वो ये आता है या नहीं आता। वो तो झूठा है। सैयद इकरारुल हसन ने कहा 24 मार्च को मैं आपके अड्डे पे आ रहा हूँ, आओ मेरा सामना करो। वो तो वहां से भी भाग गया। तो अगर अप्रैल में भी ना आया तो फिर क्या कहेंगे, आपकी अदालत क्या करेगी? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और बलोचिस्तान में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जिन जिन लोगों को उसने मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, जिन मासूम बच्चों का उसने कत्लेआम किया है, जिन लोगों का, मरीजों का उसने इलाज मुआवजा रुकवा कर उनको कब्र में पहुंचाया है, वो कातिल है। उसके खिलाफ वो तमाम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा आपके पास आया जो उसके जो है ये शुभ शुभ से जो है उसको नुकसान पहुंचा हो? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। अभी भी लोग राब्ता कर रहे हैं और मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है। जो एक इस्लामाबाद की एक मासूम बच्ची, वो सुनहरी आंखों वाली बच्ची, वो मीडिया के ऊपर चल रही है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। इसी तरह बेशुमार और लोग हैं। जी नाज़रीन, आपने इनका गम और गुस्सा जो है वो आपने देखा और किस तरह ये गुस्से में है। और अगर हक खतीब जो है उर्फ शुर्फ शुफ वाली सरकार अगर नहीं आए तो उनके साथ क्या हो सकता है, ये तो इन्होंने बता दिया है। आगे क्या होगा ये भी आपने बताना है। और कितनी हद तक जो है इकरारुल हसन हक पे है और कितना हक खतीब और किस हद तक जो है हक खतीब सच पे हैं, ये तो आपने बताना है। बहरहाल इनसे आखिरी मैसेज जो है वो जानते हैं, आखिरी मैसेज। लेकिन आप अपने गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करके करिए, क्योंकि हमारे मैं हक खतीब तुझे ना हक खतीब कहता हूँ। तू किसी मस्जिद में जाके कोई खुतबा तो दे, अवाम को दिखा कि मैंने खताब किया है और मैंने सच्चा खताब किया है। आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और तमाम कज़्ज़ाब को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि होश के नाखन लो, अकल के नाखन लो, अल्लाह से तौबा करो। और मस्जिद ज़रार बनाने वाले भी अपने आप को वो सही कहते थे, लेकिन अल्लाह ने सूरत तौबा में फरमा दिया कि उन मस्जिद ज़रार बनाने वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई। आप भी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। खुदारा आप तौबा करें और तौबा ताइब हो जाएं, शायद आपकी तौबा अल्लाह कबूल फरमा ले। जी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि कौन हक और कौन सच पे है और ये जंग कब तक जारी रहेगी, आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।